dealing with this $1 trillion economy business. But before we go there, I must thank Professor Tyagi for having laid down the complete structure and how it is all being measured and what are the challenges which the economies face, especially the economy of UP, and the promises made by the political leadership. What I would do, I will be doing only a basic introduction of GDP measurement and the data which comes out, which becomes available. And then my colleague here, she will be giving a complete roadmap which Deloitte has prepared for government of UP, how they wish to, how we are advising them to achieve it. So that's the question. Of course, it looks quite challenging, you must have seen, with that $0.28 trillion economy to becoming $1 trillion economy, and that requires about 30%, 36% of growth rate, which is very, very high. But it's possible. Why not think in more positive terms? Even if we don't achieve, we will definitely do something better. Now here, what I'll do is only, you have already listened to Professor Tyagi about the GSDP estimation and what the GSDP is, how the GVAs are calculated. He has already discussed about the approaches that you have for now basic prices. I was the architect of bringing this concept of basic prices using the system of national accounts. I was heading the national accounts at the time when we did the base year revision for 2011-12 and the report which came out in 2015. The major change was to shift from the factor cost to the basic prices, as he has very rightly explained. And the reason was very simple. The reason was the production taxes and production subsidies, they remain fixed and they are part of the production process. Whereas units of production keep on increasing, decreasing depending upon the demands. And therefore, the product taxes and product subsidies vary depending upon the output. And therefore, we should be able to account for these differences properly. Another issue, which of course he has dealt, is the income approach and the production approach. Of course, the production approach is very basic, and that is what is recommended by the Government of India to all the states to follow, which is measure the output at basic prices and subtract the intermediate consumption, which is at market prices, which gives you the final GVA. And gross value addition, each sector-wise we can calculate, add it together to arrive at the GSDP on basic prices and then convert it to GSDP at market prices. So that's the simple methodology used. Another method which we have been using in the national accounts is at the national level is using the consumption, the income approach, which is CE. What he was explaining is compensation to employees. Compensation to employees means wages. What wages are being paid, plus operating surplus, which is you can call it a profit, and MI we call sometimes it is a mixed income. So mixed income is mixture of both. And you are also a wage employee and also having an entrepreneurship, which is very common in the unorganized sector. That part is taken care of. CFC he has explained, it's a kind of a depreciation. How much capital has been used for producing goods and services. And therefore it is taken care of at CFC. And of course we take care of production taxes and production subsidies. Now, one more approach which has been, I am not explaining here because we are talking in the context of state GSDP, is the expenditure approach. In expenditure approach, the components are, as he rightly said, private final consumption expenditure, PFCE, plus government final consumption expenditure, the GFCE, then capital formation, how much money has been spent on capital formation, plus the valuables which the economy has gained, then you have net of imports and exports. The problem, as he rightly said, the problem in the states is we do not have sealed borders.
So therefore, exports and imports are not properly captured. VAT could be one method of doing it, but VAT is also a lot of things happen without VAT, and therefore whereas in the national level, when anything goes out of the country, it's all captured by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics through the Customs House data, so because it passes through the Customs Department, and therefore that's more accurate. So import and exports are more correctly measured there. हाँ, हिंदी बोले? अच्छा, बिल्कुल हिंदी बोले. तो तीन अप्रोचेस हैं. एक तो प्रोडक्शन अप्रोच जो हमने आपको सबसे पहले लाइन में लिखी हुई है GVA के, इसमें आउटपुट एट बेसिक प्राइसेस, जो जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, जितने भी उत्पादन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, उसकी वैल्यू है, हाँ? और उसकी वैल्यू बेसिक प्राइसेस कहलाती है, वो बेसिक प्राइसेस पे है, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज को अकाउंट फॉर नहीं किया है. दूसरा उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि इन चीज़ों को पैदा करने के लिए लगता है. इनको क्या पैदा करने के लिए लगता है? कोई भी मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री जो कुछ प्रोड्यूस करती है, उसके लिए कुछ इनपुट्स जाते हैं. जो मटेरियल इनपुट्स हैं उसको यहाँ अकाउंट फॉर करते हैं. उसमें जो सर्विस कंपोनेंट है वो इसमें अकाउंट फॉर नहीं करते. ठीक है, तो इससे आपका टोटल GVA निकल आता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन. ये हर एक आइटम का, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में क्रॉप सेक्टर में फिर वो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री में फिशरीज सेक्टर, ऐसे करके हर एक सेक्टर बाई सेक्टर. और क्रॉप में भी सिर्फ क्रॉप नहीं है, इंडिविजुअल क्रॉप आप लोग सब डाटा देते होंगे जो एग्रीकल्चर से यहाँ आए हुए हैं, कि वो हर एक का टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ये तो प्रोडक्शन हो गया, उसमें इनपुट्स जो गए, इनपुट जानने का तरीका है एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्टडीज कर. तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्टडीज से हमें इनपुट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि क्या क्या इनपुट इसमें जाते हैं, और उसको हम यूज करके प्रोडक्शन से रिलेट कर लेते हैं कि इससे टोटल वैल्यू एडिशन उस क्रॉप के प्रोड्यूस करने में कितना हुआ. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. इसके बाद आइए एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर. ये सारे अभी डिटेल में आपको सेक्टर बाय सेक्टर ये बताएंगे कि कैसे हम, आपका क्या डाटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सब बताएंगे. अभी तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि ये इस किस्म से सारे सेक्टर्स का एक एक करके इंफॉर्मेशन ली जाती है. अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेन सोर्स ऑफ डाटा क्या है? जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है उसका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसमें फूड प्रोसेसिंग भी है, उसमें सारे किस्म की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है. तो उन सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट भी उसमें मालूम पड़ता है और टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट भी मालूम पड़ता है, और उसको घटा के हम वैल्यू एडिशन निकाल लेते हैं. ये तरीका हमारा वैल्यू एडिशन निकालने का है हर एक सेक्टर के साथ. इसी तरीके से सर्विसेज का है. सर्विसेज में ही राइटली सेड इनकम अप्रोच है. इसमें इनकम अप्रोच में जो वेजेस पे किए उसके बेसिस पे उसको कंप्यूट करते हैं, करंट प्राइसेस पे होता है. तो ये तो तरीका हो गया GSVA निकालने का, और इससे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम इसको निकालते हैं. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो अभी तक प्रोफेसर त्यागी ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. अब ये एस्टिमेट्स नेशनल लेवल पे कैसे रिलीज होते हैं इसके बारे में थोड़ी सा जिक्र कर लेते हैं. ये क्वार्टरली एस्टिमेट्स देते हैं. हर एक क्वार्टर के एंड में एक एस्टिमेट आता है. ये हर एक फर्स्ट क्वार्टर है उसका 2 महीने के बाद ये सारा एस्टिमेट आता है. उसमें पूरी ग्रोथ आती है कि कितनी GDP की ग्रोथ हुई और किस किस सेक्टर्स में ग्रोथ हुई और कितना उसमें इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ और किन किन वजहों से हुआ, उसका एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी आता है. तो इस तरीके से फर्स्ट क्वार्टर का 31 अगस्त को आएगा, सेकंड क्वार्टर का 30 नवंबर को आएगा, थर्ड क्वार्टर का 28 फरवरी को आएगा, चौथा क्वार्टर का 31 मई को आएगा. इस तरीके से उसके एस्टिमेट्स निकलते रहते हैं. साथ में एनुअल एस्टिमेट्स भी निकाले जाते हैं. एनुअल एस्टिमेट्स भी 4 एस्टिमेट्स होते हैं. तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ये सबसे पहले निकालते हैं 7 जनवरी को. ये डाटा जो है नॉर्मली बजट फॉर्मुलेशन में यूज होता है. ये बजट के लिए ज़रूरत होती है. एडवांस एस्टिमेट होते हैं, इसमें आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती. इसमें सिर्फ जो इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, IIP में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हो गई, या एग्रीकल्चर में कुछ रिपोर्टिंग हुई ग्रोथ की, तो वो उस इंडिकेटर बेस्ड निकालते हैं इसको. इसके बाद सेकंड एडवांस एस्टिमेट में कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन ये फिर भी इंडिकेटर बेस्ड ही रहता है.
इसके बाद जो प्रोविजनल एस्टिमेट होता है वो थोड़ा बेटर होता है, उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन लेके प्रोविजनल एस्टिमेट निकालते हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंपनी से कॉर्पोरेट सेक्टर डाटा आने लगता है, वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट होता है वो ज़्यादातर स्टेबल एस्टिमेट होता है, लेकिन फिर भी नेशनल अकाउंट्स के एस्टिमेट 3 दफ़े रिवाइज होते हैं कम से कम। तो सेकंड रिवाइज, थर्ड रिवाइज जब हो जाते हैं तब इनको फाइनल माना जाता है, मोर और लेस फाइनल हो गए, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होते। ये इसमें डिटेल हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ये आपके पास स्लाइड रहेगी तो आप देख लेना, कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से यूपी में जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब ये एस्टिमेट्स जब ये जाते हैं तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है तो जनवरी में इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सेकेंड एडवांस में फरवरी में इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोविजनल एस्टिमेट के लिए मई में इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट के लिए जून 2025 में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल है, ये हर साल ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। थोड़ा सा सेक्टर वाइज थोड़े डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अभी इसके बाद अभी डिटेल डिस्कशन हर एक आइटम पे होगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस इंस्टीट्यूशन में, हमारे 4 इंस्टीट्यूशंस में इसमें मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो जनरल गवर्नमेंट, जो हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, ये सारे इनके लिए हम बजट डॉक्यूमेंट एनालाइज करते हैं। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में जो पुराने बजट लेके उनको एनालाइज करता है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, और कोई नहीं करता। तो ये इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बजट एनालाइज करें, हर एक एक्सपेंडिचर पिछले 3 सालों में किस लिए हुआ, उस सब में उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि ये करंट एक्सपेंडिचर है, ये ओई है, ये क्या है, ये इनकम अप्रोच इसमें लगाई जाती है। ठीक है। दूसरा हुआ फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सरकारी है। इसमें 2 ग्रुप है, एक तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस या डिपार्टमेंटल कमर्शियल यूनिट्स, इसमें एक टिपिकल एग्जाम्पल्स है रेलवेज का, और दूसरा है पोस्टल डिपार्टमेंट। यही 2 मेजर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं, और जो थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन इसमें भी वही बजट एनालाइज करके, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बजट के थ्रू आती है, तो बजट से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। दूसरी जो है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, NDEs कहलाता है हम लोग के नेशनल अकाउंट्स की लैंग्वेज में। वैसे ये कुछ नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। इनका जो है पूरी एनुअल रिपोर्ट जो फाइनेंशियल उनके बजट एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे आउटपुट निकाल के इसमें माइनस कर देते हैं, वो निकाल। प्राइवेट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के लिए आपके पास फिर वही 2 ग्रुप हैं, प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, जो कि जिसमें हम MCA मेजर डेटाबेस है, जिससे कि हम लोग निकालते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन अप्रोच होती है। और दूसरा है जो है एक क्वासी कॉर्पोरेशन, ये दिस इन्वेंशन वाज डन इन द लास्ट बेस रिविजन एक्सरसाइज। ये क्वासी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? क्वासी कॉर्पोरेशंस are the units which are not corporates but have a feature of a corporate body. क्या होती है कॉर्पोरेट बॉडी? फीचर ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी क्या है? वो सिंपल है कि उनके पास वैसे ही बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास नहीं है, उनके पास कोई सिन नंबर नहीं है। वो पार्टनरशिप हो सकती है, वो प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो ऐसी कोई यूनिट हो सकती है जो कि इन दोनों में भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक यूनिट है जो इस तरीके से प्रोड्यूस करती है। इसका डाटा सोर्स थोड़ा सा मुश्किल है और चैलेंजिंग है। ये 2 सोर्स हैं इसके, एक तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में जो डाटा कलेक्शन होता है वो फैक्ट्रीज के बेसिस पे होता है। जो फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है, जिनके पास 10 और मोर वर्कर्स हैं, विदाउट पावर 20 और मोर वर्कर्स हैं, विद पावर वाला जो है, उसके बेसिस पे होता है। अब उसमें 2 किस्म की फैक्ट्रीज हो सकती हैं। एक तो जो किसी कंपनी के अंडर में रजिस्टर्ड है, जो जिसकी ओनरशिप कंपनी है, और ऐसी भी फैक्ट्री हो सकती है जो पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप। तो एक सेट ऑफ डाटा क्वासी कॉर्पोरेट का यहाँ से आता है, इस पार्ट से जो कॉर्पोरेट नहीं है, और दूसरा सेट ऑफ डाटा जो आता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सर्वे से आता है।
अनऑर्गेनाइज सर्वे का क्या तरीका है? अनऑर्गेनाइज सर्वे जो है एंटरप्राइजेस का एक सर्वे होता है जिसमें कि हम सिर्फ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का सर्वे करते हैं। सर्वे करने का तरीका क्या है? उनके नंबर के बेसिस पे, ज्योग्राफिक एरिया बेसिस पे उनको सेलेक्ट करते हैं, उसमें से हर एक इंडस्ट्री वाइज उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उनका वो मेजर करते हैं, और देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स उस सेक्टर में कितने हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू एडेड पर वर्कर से मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकालते हैं। वो कंट्रीब्यूशन माना जाता है उस सेक्टर का। उसमें से जो यूनिट्स, जितनी परसेंटेज ऑफ यूनिट्स और जितनी जो यूनिट्स बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती है, मे बी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स और व्हाटएवर, उनको हम इसमें कॉसे कॉर्पोरेट में ऐड करते हैं। तो ये नया एनिमल कॉसे कॉर्पोरेशन यहाँ पे खड़ा हो गया। इसके बाद बाकी सब जो अनऑर्गेनाइज में है, जो छोटी मोटी दुकानें आपको दिखाई देती हैं, तो बार्बर शॉप से लेके तमाम सारे जो ये ठेले वाले, ये सब कुछ, ये सब इस वाले लास्ट कॉलम में जो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट है इसमें आती है। इस तरीके से कोशिश करते हैं कि सारी की सारी एक्टिविटीज हम नेशनल अकाउंट एस्टिमेशन में कैप्चर कर लें। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे हम पूरी तरीके से कैप्चर कर पाते हैं? दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड बाय मेनी पीपल। देखिए, जब नेशनल अकाउंट्स डेवलप किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि कंसेप्चुअली, पहली बात तो है कंसेप्चुअली आपने सारा कैप्चर किया कि नहीं किया। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डाटा कलेक्शन है वो आपको पूरी तरीके से कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो कंसेप्चुअली तो नेशनल अकाउंट्स पूरा कैप्चर करता है कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डाटा कलेक्शन के और द सोर्सेज ऑफ डाटा के, उसमें इशू है। क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका सर्वे हर साल तो नहीं कर सकते, वो इतना मेजर सर्वे होता है, पूरे देश भर में करना होता है, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको क्या करते हैं कि 5 साल में एक बार करते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट सर्वे जरूरी है क्योंकि हम वैल्यू एडेड पर वर्कर निकाल के करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सर्वे भी हम वंस इन 5 ईयर्स किया करते थे। अब तो नया सोर्स ऑफ डाटा आ गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होने लग गया, और पीएलएफएस से आपके पास हर साल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जिसको आप यूज कर सकते हैं नेशनल अकाउंट बिल्डअप करने में। इसी तरीके से अब इन्होंने एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का सर्वे कर दिया। ये हर साल होगा, तो जैसे कि एएसआई होता है उसी तरीके से ये भी हर साल होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनको हम नहीं कैप्चर कर पाते, और इसलिए जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर हिट होता है, जैसे नोटबंदी हो गई, सबसे ज्यादा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हिट हुआ, तो उसको आप कभी कैप्चर कर ही नहीं पाए। उसको कैप्चर करने का तरीका यह है कि इसकी रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इसलिए कंसेप्चुअली तो सारा कवर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली समटाइम्स सम ऑफ दीस थिंग्स में भी लेफ्ट आउट। इसीलिए ये जो क्वेश्चन ऑफ बेस रिविजन, जो आपने कहा कि बेस रिविजन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव रिटन आल्सो इन सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स कि भाई अब 2011-12 बहुत दिन हो गए, अब आपको कम से कम बेस रिविजन कर देना चाहिए, और कम से कम बेस रिविजन की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बेस रिविजन जो हमने भी कराया था तो उसमें कम से कम 2.5 से 3 साल लगे थे। 2.5 से 3 साल का काम होता है ये बेस रिविजन एक्सरसाइज का, क्योंकि एग्जिस्टिंग सारे डेटा सोर्सेज को आपको कलेक्ट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि वो ठीक बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसी के अलावा अगर कोई डाटा सोर्स अभी नहीं आया है तो उसको कैसे मैच करना है, उसका क्या ऑल्टरनेटिव निकालना है, और कई नए डाटा सोर्सेज आ गए हैं जिनको कि हम अगर यूज करना चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी हमें नहीं पता। अब आजकल बहुत सारी बातें लोग करते हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, करेक्ट, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन क्या जीएसटी का डाटा यूजेबल है, किस फॉर्मेट में वो हम यूज कर पाएंगे, ये एक सवाल है। इस सवाल को हम तभी हैंडल कर सकते हैं जब इस डाटा को एक्सेस करें, यूज करें और उसके रेट्स अप्लाई करें, अंडरस्टैंड करें कि उसका इम्पैक्ट जीडीपी के मेजरमेंट में कितना हो रहा है। तो ये एक इशू है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। तो another issue which has been raised by the digitalization, true, digitalization is very important factor। अभी OECD ने एक गाइडलाइंस बनाई है कि डिजिटल इकोनॉमी को कैसे मेजर किया जाए, और उन्होंने ये कहा G20 के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि भाई डिजिटल इकोनॉमी मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है,
और उन्होंने कहा कि एक सप्लाई यूज टेबल के बेसिस पे आप इसको मेजर कर सकते हैं, जिसमें हर एक प्रोडक्ट वाइज, हर एक इंडस्ट्री वाइज जो भी आपके पास वैल्यू एडिशन का इंफॉर्मेशन है उसको आप स्प्लिट करें। कितना डिजिटल प्रोसेस से उसमें हो रहा, उसके लिए उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताया। उन्होंने कहा कि देखो, जितना डिजिटल ऑर्डर होता है और जितना डिजिटल सप्लाई होता है, उस इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर डिजिटल ऑर्डरिंग करी गई है, इसका मतलब है कि ये डिजिटलाइजेशन की वजह से है, और उसकी सप्लाई, अगर गुड्स होंगे तो नेचुरली फिजिकल सप्लाई होगी। लेकिन अब जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म पे आपको मूवी दिखाते हैं, तो आपने उसका पेमेंट किया, तो ये भी एक डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है। या आप एयरलाइंस का टिकट खरीदते हैं, एयरलाइन का टिकट खरीदा तो आपने डिजिटल प्रोसेस से पूरा कंप्लीट किया। इस तरीके से आप इन सारे सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन अलग कर सकते हैं, और इन कंट्रीब्यूशंस को अलग करके आप मेजर कर सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और इसको ईयर टू ईयर मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि हम जान सकें कि किस तरीके से इसका चेंज है। तो ये मैसेज है, और बाकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। खासतौर से प्राइमरी सेक्टर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जो भी डाटा स्टेट गवर्नमेंट देती है वो मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टिंग विद माइनर वैलिडेशन चेक्स। तो दो एडवाइस है मेरी इसमें। एक तो आप अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। बहुत सारी आइटम्स नए प्रोड्यूस होने लग गए, बहुत सारी चीज़ें, नए फ्लावर्स आ गए, बहुत सारी नई वैरायटीज़ आ गई हैं, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स हैं उनमें शायद ये सब क्लियरली नहीं इंडिकेटेड है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उनको इंडिकेट करें। मैं डायरेक्टरेट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस फॉर्मेट को ऐसा स्ट्रक्चर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स कंसर्न दे पाएँ। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अपना वैलिडेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी इंफॉर्मेशन यहाँ बैठे हुए आती नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है। तो जब डिस्ट्रिक्ट से फ्लो हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट के से आपके पास आएगी, इसका वैलिडेशन चेक होना चाहिए। उसके लिए आपके पास कुछ सिस्टम्स होने चाहिए, उसके लिए आपके पास कोई तरीका होना चाहिए जानने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट ने भेजा है ये वाकई में ठीक है नहीं, और उसके अलावा कोई ऐसा इंडिकेटर जो आपके पास हो जिसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। तो इतना ये मैसेज है कि अगर आप अपना क्वालिटी ऑफ डाटा इंप्रूव करेंगे तो GSDP का नंबर भी बढ़ जाएगा, और शायद हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी तो 27-28 में नहीं, या एक आध साल के बाद, 2 साल के बाद ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Welcome back to the session. I must say I have to thank my stars कि session lunch के बाद हो रहा है. But it makes my work equally challenging because मुझे डर है कि कहीं आप लोग सो ना जाएं. So I'll try to keep it as interesting as possible. Let me quickly introduce myself. I am Dr. Rumki Majumdar. I'm the Chief Economist with Deloitte India. I have been associated with the macro fiscal team. This has been a year of journey which has been very exciting, and what we do here is building a nation, and we are very proud to be here. First of all, thank you so much for giving me this privilege of speaking to you all and being in presence of such eminent speakers. What we are doing here is envisioning a path, a roadmap where we can take the UP economy from a $0.28 trillion economy to a $1 trillion economy, right? And it's not going to be an easy journey. ये हमको सबको समझ में आ रहा है कि it's going to be a transformational journey, but that would require a very different way of thinking, a very strategic thinking, and that's where the Deloitte is coming in, because I'm sure आप लोग सभी wonder करते होंगे कि you have heard the name Deloitte. तो Deloitte सरकार के साथ क्या काम कर रही है? And that's why I stand here to explain how we are helping the government to get to that strategic transformation path and how we are going to support in this journey. Now, right now we are at $0.28 trillion economy. We want to be $1 trillion, which is about 3.5 times growth. It's not an easy journey. हमको सबको समझ आ रही है कि it seems impossible. Yes, but not something that we can aspire for sure. And इसके लिए
हम लोगों को बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेंगी, and this will require the way we transition our growth drivers away from an agri-led economy to a more of a manufacturing-led, industry-led economy or a tertiary sector, service-driven economy. The other thing is we have to bring in investment. Dr. Tyagi, Professor Tyagi ने कहा था कि एक $1 trillion GDP के लिए $4 trillion of investment has to be brought in, and it varies from sector to sector, right? And that's where we are kind of helping the government to bring in investments from within, to ensure that the investment comes from within, from outside as well. It's going to be 20% public sector driven investments and 80% investments have to come from private sector. And we also aim to create 24 million to 2.4 crore jobs in 5 years. Now, इस vision के लिए what we have tried to do is focus on 6 key areas. One is to have a robust institutional construct. What we mean is growth कहाँ से आएगा? When we are saying industry-led growth, कौन से sectors पे emphasis देना है? कौन सी sectors in the manufacturing, in the services, कहाँ पे हमारा potential better है? कहाँ पे हमको ज़्यादा focus करनी है? कहाँ पे हम लोगों को more resources चाहिए होंगे? So those 10 sectors that we have identified, which has a dedicated ACS level SPOC. And these are some of the core sectors, such as agriculture, tourism, IT, ES, manufacturing, and some of the enabling sectors, which are education, energy, health, infrastructure, and urban development. These are the core sectors that we are prioritizing. Second, strengthening the data systems. And this is where your role will be very, very important. The reason we are having this workshop is ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया, स्ट्रैटेजी तो कर ली, पर आर वी एबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन? हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं क्या वो जीडीपी? एंड दैट इज व्हाट द सीएस हैज बीन ट्राइंग टू आस्क कि we are on a road map which is very different from what it was used to be. So how are we making sure that we are able to capture those information and consider that into a GDP estimation, right? And that is why we are trying to do this workshop to sensitize you. Is your role is going to be very, very important to ensure that we collect the data and capture the GDP well. Third is to have an inclusive growth. ऐसा नहीं कि 2-3 शहरों में growth हो गई, बाकी सारे districts and शहरों में strategizing to make sure that the growth is equitable across all 4 regions. Policy refresh. We have had 25 policies that we have been refreshed so far. We have incentivized investments across all priority sectors. We have provided non-fiscal support. All these are to ensure that the policy is more inclusive, much more diverse. बताया $40 million for $480 million का investment MOUs का sign हुए हैं. How do we ensure that those money comes in? How do we ensure कि एक CEO जो इंडिया में आ रहा है, he actually comes to UP first and doesn't go to Karnataka, doesn't go invest in Bangalore, because every state is competing. Trust me, Karnataka also wants to be a $1 trillion economy. Tamil Nadu also wants to be a $1 trillion economy. It's a competition, and we have to ensure that every investor who's looking at India is tapped first. And that's where Deloitte is actually helping the government to bring in those investors, to have those dialogue, to convince them that this is the place, the state has a lot of potential. Finally, the integrated planning, that every district and every region gets the priority in this share, in this growth share. Now, something that we want to do is that UP should not be growing just for UP. It should grow for India. It should deliver for India. It should deliver for the world. UP should be known in the world. कि हाँ, there's a state which Bangalore का नाम सब जानते हैं, right? Mumbai का नाम सब जानते हैं. We want to take Lucknow, Kanpur in that league, and that is what we are aiming to do. And these are some of the strategies that we are trying to bring in. For example, one is food basket of India. Agriculture is contributing a significant proportion of GDP in India as well as to the state.
can we ensure that the state becomes a food basket for the country, for the world it's also. So iske liye, where emphasis has to be, there has to be we are bringing in agricultural tech startup so that we ensure that the technology can help in increasing the productivity of agriculture sector. Dairies में हम लोग काफी policy measures लेके आ रहे हैं. We have to be economically sustainable because that is becoming very important. Europe has made a policy कि if the practices are not sustainable, they will not import from those countries. अगर हम यूरोप market में export कर रहे हैं, so we have to follow their guidelines as well. So we have to be very cognizant of how the world is expecting us to deliver. Second is world-class infrastructure, and the government has already started. You can see highways being built, and that is where we are kind of coming in to ensure that we strategize where the logistics hubs would be. कहाँ पे inventories होनी चाहिए, कहाँ एक inventory से दूसरे inventories connect होनी चाहिए, so that the efficiency is built in. It is एक city से दूसरी city पहुँच गया, पर city के अंदर जाने में उसने 2 दिन लगा दी, सामान पहुँचने में. That involves cost. तो वो कैसे हम कम कर सकें? ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, ये सब add करती हैं cost को. And we have to be cost effective, and that's where we are kind of bringing in strategies. MSMEs, big sector which contributes to the employment, jobs. Or are we making sure that this growth that we are envisioning has equal opportunity for MSMEs? उनको register कराना, उनके लिए policies बनाना, उनको ensure करना कि जब situation like COVID comes, they don't suffer. They also get their share of being equitable, share of their the contribution that they contribution that they're giving to the economy, right? So through insurance policies, through promotional policies, through digitization, we are making sure that MSMEs also get their opportunity as well. Sunrise sector, mobiles that we are using in a country of 1.4 billion. Can we produce it in India? Imagine how much import bill हम लोग का कम होगा. So why not make it in India? Why not make it in UP? So we are trying to bring in investments in those forms, in those sectors where there's a lot of potential to tap and we can actually make a difference. Similarly, attractive tourist destination. हमारे colleagues जो US से आते हैं, Germany से आते हैं, आके बोलते हैं आगरा देखना है, फिर वापस दिल्ली जाना है. And I keep saying, why not Banaras? Why not Ayodhya? They haven't even heard the names. Why not? They are places to be visited, and that is where we have to ensure that these places are known to those foreigners who will say कि आगरा भी देखेंगे and बनारस भी देखेंगे. So वो strategy, वो सब changes करने के लिए हमें infrastructure, we have to make sure that the quality of experience that they have is world class, right? So उस strategy पे हम लोग help कर रहे हैं. Rapid urbanization, clean quality power. Electricity is an issue, consistent electricity is an issue, and it's something which अगर आपको factories लगानी है और semiconductor की suppose आपको factory लगानी है, you have to have a consistent power supply. Even 1 minute के लिए electricity voltage drop नहीं हो सकती, तो उसके लिए infrastructure चाहिए. कैसे कर सकते हैं? How do we get there? All these strategies are being thought through by our sector leaders, our Deloitte people, and we are working along with the departments to think through these strategies and make progress. So this is where Deloitte comes in, and I hope I have explained some of the questions that you may have been asking about what Deloitte is doing as in partnership with government. With that, I hand over to the next presenter. If you have any questions, please feel free to reach out to me. Me and my team out there who are sitting there can help you with any questions that you may have.